آج کل بہت زیادہ لوگوں کا واٹس ایپ ہیک ہو رہا ہے اور اسکیمر آپ لوگوں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑے آرام سے آپ کا واٹس ایپ ہیک کر لیتے ہیں۔ تو آج کی اس اویئرنیس ویڈیو کے اندر ہم نے 4 چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ اسکیمرز کیسے آپ کا واٹس ایپ ہیک کرتے ہیں۔ نمبر 2 آپ کا واٹس ایپ ہیک کرنے کے بعد وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ نمبر 3 آپ خود کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 کہ اگر انفارچونیٹلی آپ کا یا آپ کسی ریلیٹیو کا واٹس ایپ آلریڈی ہیک ہو چکا ہے تو آپ کیسے منیمم ٹائم کے اندر اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ ڈسکلیمر، دس ویڈیو از جسٹ فار ایجوکیشنل اینڈ اویئرنیس پرپسز۔ سو پوائنٹ نمبر 1 کہ اسکیمرز کیسے آپ کا واٹس ایپ ہیک کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ نارملی آپ لوگ واٹس ایپ کو کیسے لاگ ان کرتے ہیں۔ آپ کے فون میں اگر واٹس ایپ انسٹال نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ کی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں۔ انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد وہ آپ سے لاگ ان مانگتا ہے۔ اس لاگ ان کے اندر آپ کو اپنا سم نمبر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے سم نمبر وہاں پہ انسرٹ کرنے کے بعد اس سم نمبر کے اوپر، اس فون نمبر کے اوپر وہ آپ کو ایک OTP بھیج دیتے ہیں، مطلب ایک 6 ڈیجٹ کا ایک کوڈ سینڈ کر دیتے ہیں۔ جب وہ کوڈ آپ اپنے SMS سے کاپی کرتے ہیں اور اپنے واٹس ایپ کے اندر جا کے لاگ ان میں اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کا واٹس ایپ آپ کے پاس لاگ ان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آتی ہے سب سے امپورٹنٹ بات اس OTP کی کہ اگر وہ OTP آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کر دیں تو وہ بندہ بڑے آرام سے آپ کے واٹس ایپ کو اپنے پاس لاگ ان کر لے گا۔ اور اسکیمرز یہاں پہ یہی کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فون ہوتا ہے جس کے اندر واٹس ایپ انسٹال ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ اپنے فون کے اندر واٹس ایپ کو اوپن کرتے ہیں، اس واٹس ایپ کے اندر وہ آپ کا نمبر پرووائڈ کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کا نمبر وہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے واٹس ایپ آپ کے سم کے اوپر ایک OTP بھیج دیتا ہے، یعنی کہ ایک 6 ڈیجٹ کا کوڈ بھیج دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوڈ آپ کے سم پہ بھیج دے، ہو سکتا ہے واٹس ایپ وہ کوڈ آپ کے آلریڈی لاگڈ ان واٹس ایپ کے اندر بھیج دے۔ اب اگر کسی بھی طریقے سے یہ کوڈ آپ نے اسکیمر کو پہنچا دیا، اس کو بتا دیا، تو بڑے آرام سے آپ کے فون سے واٹس ایپ لاگ آؤٹ ہو جائے گا اور اسکیمر کے فون کے اندر واٹس ایپ لاگ ان ہو جائے گا، کیونکہ واٹس ایپ کی ریسنٹ پالیسی کے مطابق 2 فونز میں ایٹ اے ٹائم سیم واٹس ایپ لاگ ان نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہی آپ نے اپنا OTP اسکیمر کو بتایا، اس نے وہ OTP اپنے پاس ڈالا، آپ کے پاس سے واٹس ایپ لاگ آؤٹ ہو گیا اور اسکیمر کے پاس واٹس ایپ لاگ ان ہو گیا۔ اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ اپنا OTP اسکیمر کو بتا کیسے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اسکیمر ہو سکتا ہے آپ کو کال کرے اور کوئی فیک کمپنی بن کے آپ سے بات کرے۔ لیٹس سے آپ کو کہہ سکتے ہیں یار آپ کا دراز کا پارسل آیا ہوا ہے، آپ کے پاس ایک OTP ہے ہماری طرف سے، آپ OTP ہمیں بتائیں اور میں آپ کا پارسل آپ کو ڈیلیور کر دوں گا۔ یا ہو سکتا ہے وہ پوسٹ آفس سے بن کے کوئی بندہ آپ سے بات کرے فون کے اوپر، کال کے اوپر، اور پہلے وہ کچھ انفارمیشن کو جعلی OTP ایک آپ کے ساتھ شیئر کرے اور آپ کو بولے کہ آپ اپنے والا OTP میرے ساتھ شیئر کرو۔ اب حالانکہ جو واٹس ایپ آپ کو OTP لاگ ان کا سینڈ کرتا ہے اس میسج کے اندر کلیئرلی مینشن ہوتا ہے کہ یہ OTP واٹس ایپ میں لاگ ان کے لیے، لیکن پھر بھی آپ لوگ اکثر جلدی کے اندر یا بے دھیانی کے اندر یا آپ اپنی کسی مصروفیت کے اندر ہوتے ہیں تو آپ اس پہ غور نہیں کرتے بھائی یہ OTP کس چیز کا ہے۔ آپ سمپلی اس کے کہنے کے مطابق OTP SMS سے پڑھتے ہیں اور وہ OTP بغیر اس میسج کو پڑھے وہ OTP اسکیمر کے حوالے کر لیتے ہیں اور اس طرح اسکیمر بڑے آرام سے بغیر کوئی زیادہ ٹیکنیکل کام کیے آپ کا واٹس ایپ اپنے پاس لاگ ان کر لیتا ہے۔ سو اس پوائنٹ نمبر 1 میں ہمارے پاس لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا کوئی بھی OTP، اسپیشلی واٹس ایپ کا OTP کسی کے ساتھ بھی آپ نے شیئر نہیں کرنا۔ چاہے بندہ کو فون پہ آپ کا OTP مانگے، چاہے کوئی بندہ فزیکلی آپ کے پاس آ کے آپ کا OTP مانگتا ہے، کبھی بھی آپ نے اپنے OTPs اسپیشلی واٹس ایپ کے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنے۔ نمبر 2 آپ کا واٹس ایپ ہیک ہونے کے بعد اسکیمرز کیا کرتے ہیں۔ اب ایک تو جنرل بات ہے کہ اگر آپ کا واٹس ایپ اپنے پاس لاگ ان کر لیا تو ظاہری بات ہے آپ کی بہت ساری پرائیویسی وہاں پہ بریچ ہو سکتی ہے، آپ کی بہت ساری پرسنل انفارمیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ میں ان کو پڑھ سکتا ہوں، اپنے پاس رکھ سکتا ہوں اور بعد میں آپ کو بلیک میل کر سکتا ہوں۔ لیکن جو موسٹلی کام اسکیمرز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہیک کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ کی پوری کنٹیکٹ لسٹ سے پیسے مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسکیمرز کے پاس ملٹیپل اکاؤنٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ جو ایزی پیسہ پہ پیسے سینڈ کر سکتا ہے وہ اس کو ایزی پیسہ کا نمبر دیتے ہیں، جس کے پاس MCB، میزان، الفلا، جس بینک کا بھی آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے وہ انہوں نے اپنے پاس بھی ایک رکھا ہوتا ہے اور آپ کو وہ ریلیونٹ اکاؤنٹ شیئر کر کے آپ کو فورس کرتے ہیں، آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی مجھے ارجنٹ ضرورت ہے، فوری طور پہ مجھے آپ اپنے پیسے سینڈ کرو۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کا واٹس ایپ ایک بار ہیک کر لیتے ہیں، اپنے پاس لاگ ان کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ آپ کی موسٹ ریسنٹ چیٹس کو میسج کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پھنسنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایک دوست سے اگر 2 منٹ پہلے واٹس ایپ پہ بات کر رہے تھے اور 2 منٹ بعد اس کا میسج آ گیا کہ بھائی مجھے فوری طور پہ 50,000 روپیہ چاہیے، مجھے فوری طور پہ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ روپیہ چاہیے، تو ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئے گا کہ جس بندے سے میں 2 منٹ پہلے بات کر رہا تھا 2 منٹ پہلے اس کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے۔ سو اس پوائنٹ نمبر 2 میں ہمارے پاس لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے صرف ایک میسج کے اوپر آپ نے اس کو پیسے سینڈ نہیں کرنے۔ اب چاہے آپ کا جتنا مرضی قریبی جاننے والا ہو، اگر کوئی بندہ آپ سے SMS کے اوپر، میسج کے اوپر، ایک واٹس ایپ میسج کے اوپر پیسے مانگتا ہے تو لازمی طور پہ اس کو کال کر لیں، ویڈیو کال کر لیں
और वेरीफाई कर लें कि यार ये बंदा वही है कि नहीं। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि लेट से आप अपने दोस्त के साथ बात करें और आपको पता चल गया यार इसका व्हाट्सएप हैक हो चुका है और इस टाइम स्कैमर मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो आप उससे मल्टीपल उसके बैंक की डिटेल्स वगैरह निकालने की कोशिश करें। जितने भी बैंक की डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो डिटेल्स आप उससे लें, और एज अ गुड प्रैक्टिस वो चीज़ें आपको बाद में पाकिस्तान में लेट से FIA के साथ या रेलिवेंट बैंक्स के साथ शेयर करनी चाहिए विद प्रूफ कि भाई ये वो बैंक अकाउंट हैं जो कि फ्रॉड के अंदर और 2 नंबर कामों के अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप एक कॉमन पर्सन है पाकिस्तान के, तो उस चीज़ का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम जाते हैं प्रिवेंशन की तरफ, विच इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, कि आप अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप को बचा कैसे सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक ना हो सके। अब इस पॉइंट 2 के अंदर हम 2 बातें ऑलरेडी जनरली पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये कि कभी भी आपने अपने OTP किसी के साथ शेयर नहीं करने होते, और सेकेंडली अगर कोई आपसे पैसे मांगता है सिर्फ एक मैसेज के ऊपर, सिर्फ एक SMS के ऊपर, तो वो कभी भी आपने उसको शेयर नहीं करने होते। आपने उससे कॉल पे वेरीफाई करना होता है कि भाई जो बंदा मुझसे बात कर रहा है वो असल में है भी वही कि नहीं। अब हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो नंबर 1 काम है और जो 1 एंड ओनली काम है जो आप कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के साथ, वो है MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना। डेमो देने से पहले मैं सिंपली ये बता दूं, ये होता क्या, ये सिर्फ आपके व्हाट्सएप का एक पिन होता है। आप अपने व्हाट्सएप का एक पिन सेट कर सकते हैं। उस पिन सेट करने से क्या होगा कि लेट से कल को आपका OTP कहीं से लीक हो के स्कैमर के पास चला भी गया, वो आपके व्हाट्सएप को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, किसी तरीके से आपका OTP उसके पास चला भी गया, तो जब वो आपका OTP अपने व्हाट्सएप में डालेगा तो व्हाट्सएप उसे एक पिन मांग लेगा, क्योंकि आपने व्हाट्सएप के ऊपर एक पिन सेट किया हुआ है। और चूंकि उस पिन का तो उसको नहीं पता, वो तो आपको याद है, तो जारी बात है आपके व्हाट्सएप को वो लॉगिन नहीं कर सकता। और व्हाट्सएप आपके अपने फ़ोन पे भी तकरीबन हर हफ्ते में एक दफ़ा आपको फोर्स करता है कि आप अपने व्हाट्सएप को उस पिन के जरिए लॉगिन करें। इसी बहाने वो पिन आपको याद भी रहता है और आपको उसका एहसास भी होता है कि भाई ये मैंने पिन क्यों इनेबल किया हुआ था। तो अब इसके डेमो की तरफ चलते हैं। आपने करना क्या होता है, आपने अपने व्हाट्सएप को ओपन करना होता है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपने राइट साइड में जो 3 डॉट्स हैं उनको प्रेस करने, उसके बाद नीचे सेटिंग्स के ऊपर जाना है, उसके बाद अपने अकाउंट्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे नंबर 4 पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आपको टर्न ऑन लिखा आ रहा है तो मतलब आपका अभी तक MFA सेट नहीं हुआ। आपने उस पर क्लिक करके और अपना वहाँ पे MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना है। वो बेसिकली आपका एक 6 डिजिट का एक पिन होगा जो कि वहाँ पे आपने लाजमी तौर पे सेट कर लेना है। सो फाइनली अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि लेट्स से ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप या आपके किसी जानने वाले का व्हाट्सएप हैक हो चुका है, तो कैसे आप उस व्हाट्सएप को रिकवर कर सकते हैं। इस केस में पहले हमारे पास कुछ 3 नॉन टेक्निकल चीज़ें, पहले हम उन जर्नल चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी इदारे में काम करते हैं, जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं पर आप स्टडी कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे सबको आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देना होता है कि भाई मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका। इसी तरह अपने जितने सारे आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन सबको भी आपको इंडिविजुअली कॉल्स करके ये बता देना होता है कि भाई मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है और आपने प्लीज़ इस स्कैमर को पैसे सेंड नहीं करने। नंबर 2, आप जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड हैं उनके एडमिन्स को आपने स्पेशली कॉल करनी होती है और उनको बोलना होता है कि भाई मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप से निकाल दो। क्योंकि होता क्या है कि आप जितने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड होते हैं, स्कैमर के पास उतने ज़्यादा कंटेक्ट्स आ जाते हैं जिनको वो मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल इंपॉर्टेंट ग्रुप से निकाल दिया जाएगा तो जारी बात है उस ग्रुप के जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो फिर उस स्कैमर को नजर नहीं आएंगे। और थर्डली, आप अपने इसी तरह कोलीग्स को, रिलेटिव्स को बता सकते हैं कि भाई अपने आप स्टेटस लगा दें और आप मजीद अपने जानने वालों को कॉल करके बता दें कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है। इस तरह हम स्कैमर की रीच को बहुत लिमिटेड कर देते हैं। अब आते हैं अपने एक्चुअल टेक्निकल चीज़ों की तरफ। इस केस में हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 वो टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं जो हम कर सकते हैं और इसमें हम अपने व्हाट्सएप की रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। नंबर 1 में हमारे पास आता है व्हाट्सएप वेब। अगर आपका व्हाट्सएप एक फोन से निकल के दूसरे फोन में भी लॉगिन हो जाए तो व्हाट्सएप वेब फिर भी आपका लॉगिन रहता है। अब गो के इसके चांसेस तो बहुत कम हैं, क्योंकि जब भी एक स्कैमर आपका व्हाट्सएप हैक करेगा वो लाजमी तौर पे आपके व्हाट्सएप को वहां से लॉग आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन चांस है कि वो ये काम करना भूल जाए तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप व्हाट्सएप वेब के थ्रू उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप अपने व्हाट्सएप को अपने पास वापस नहीं लेके आ सकते, उसकी रिकवरी का वहां से कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि स्कैमर जिन भी लोगों से बात कर रहा है या जो आपके रिलेटिव्स और जो कोलीग्स उसको रिप्लाई कर रहे हैं, उसको आप बारी बारी मैन्युअली कॉल करके उन बंदों को बता सकते हैं कि भाई ये जिससे आप बात कर रहे हो ये मैं नहीं हूँ, ये स्कैमर है और प्लीज आप इसको अपने पैसे सेंड ना करें। इस केस में बस आपने एहतियात करनी होती है कि आपने कोई भी वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करनी है अपने व्हाट्सएप पे। लेट्स के वो स्कैमर जिन जिन लोगों को मैसेज कर रहे हैं आपने वो मैसेज जाके डिलीट नहीं करने, या 2 बंदों की चैट्स के बीच में आपने को मैसेज नहीं करना। इससे होगा क्या, इससे स्कैमर को आइडिया हो जाएगा कि भाई इस फोन का व्हाट्सएप लॉगिन है और वो व्हाट्सएप वेब को वहां से जाके लॉग आउट कर देगा। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे,
री लॉगिंग योर व्हाट्सएप, कि अपने व्हाट्सएप को आप दोबारा लॉग इन कैसे कर सकते हैं। आपने एक लम्हे के लिए सोचा तो होगा कि यार जिस तरह मैंने गलती से अपना OTP स्कैमर को बता दिया और मेरा व्हाट्सएप उसके पास चला गया, क्यों ना दोबारा अपने व्हाट्सएप के अंदर मैं अपना नंबर डालूं और दोबारा से लॉग इन की कोशिश करूं, तो मुझे भी OTP आएगा, मैं OTP डाल के अपना व्हाट्सएप दोबारा से अपने पास ले आऊंगा। राइट? रॉन्ग। स्कैमर्स करते क्या, जब भी आपका व्हाट्सएप अपने पास लॉग इन कर लेते हैं, इसी दौरान उनके पास एक और फोन भी पड़ा होता है और उस फोन के अंदर भी एक व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है। उस व्हाट्सएप पे जाके यही आपका नंबर वो दोबारा डालते हैं और बार बार OTP मंगवाते हैं। OTP आने के बाद वो हर बार उस नंबर के अगेंस्ट गलत OTP डालते हैं। इस हरकत से होता क्या है कि व्हाट्सएप आपके OTP को ब्लॉक कर देता है। जब आप अपने पास ट्राई करते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर अपना OTP डालने की, तो व्हाट्सएप आपको ये एरर देता है कि भाई आप बहुत दफ़ा गलत OTP डाल चुके हैं, इसलिए मैं मजीद आपको OTP अगले 6 घंटे, 12 घंटे या इवन के 24 घंटे तक भी आपको सेंड नहीं करूंगा। सो इस पूरे प्रोसेस में आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि जो भी टाइम व्हाट्सएप ने आपको दिया है, लेट्स से 12 आवर्स, आपको 12 आवर्स तक वेट करना होता है। उस टाइम के पूरे होने के बाद दोबारा जब आप लॉगिन की अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक नया OTP आ चुका होता है और आप अपने व्हाट्सएप को अपने पास रिकवर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स इसके अंदर भी हो सकती हैं कि लेट से स्कैमर ये कर सकता है कि वो भी आपके साथ उस 12 घंटों का वेट करे और जो ही वो 12 घंटे लेट से पूरे हों तो वो फौरी तौर पर दोबारा से गलत अटेम्प्ट्स करके आपका OTP फिर से ब्लॉक करवा दे। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जाहिर बात है टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस केस में हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये काफी लोगों से मैंने सुना तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। वो ऑप्शन क्या होता है कि अपने फोन के अंदर आप अपने व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल करें, या तो फोन चेंज कर लें ऑल टुगेदर, या अपने फोन के अंदर व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। और जब आप दोबारा लॉगिन की कोशिश करेंगे तो अक्सर केस में लोगों के साथ हुआ कि व्हाट्सएप ने उनको OTP सेंड कर दिया और वो बड़े आराम से अपने व्हाट्सएप को वापस रिकवर कर पाए। अगेन ये तरीका को गारंटेड नहीं है, लेकिन सारी बात है जब आपका व्हाट्सएप हैक हुआ हो तो फिर हर किस्म का तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहिए उसको रिकवर करने के लिए। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, रिपोर्टिंग द चैट। अगर आप एक व्हाट्सएप पे एक चैट से बात कर रहे हैं और आपको पता चल गया यार जिससे मैं बात कर रहा हूं ये स्कैमर है, तो आप उसकी चैट को रिपोर्ट कर सकते हैं। वो होता कैसे कि आप व्हाट्सएप पे उस चैट के अंदर जाते हैं, राइट साइड पे आपको 3 डॉट्स नजर आते हैं, उनको आप प्रेस करते हैं, थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है रिपोर्ट का। उस रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाके आप उस चैट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब अक्सर रिपोर्ट के केस में आपको व्हाट्सएप ऑप्शन दे देता है वहां पे कि आप रिपोर्ट में मजीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आप उसको क्यों रिपोर्ट करना चाहते हैं, और वहां पे आप जाके बता सकते हैं कि मैं इसको इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूं कि ये मेरे दोस्त की, मेरे फ्रेंड की चैट इस टाइम कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है, उसका व्हाट्सएप स्कैमर के पास चला गया। नहीं तो अगर वो रिपोर्ट में आपको मजीद तफसील लिखने नहीं भी देता, तो अगर बहुत सारे लोग उस चैट को रिपोर्ट करेंगे तो व्हाट्सएप लाजमी तौर पे उस रिपोर्ट पे एक्शन लेके उस चैट को ब्लॉक कर सकता है या उसका OTP दोबारा से ओपन कर सकता है ताकि आप उस व्हाट्सएप को अपने पास रिकवर कर सकें। अब हम आते हैं फाइनली अपने फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अपने व्हाट्सएप रिकवरी के अंदर, कि आप व्हाट्सएप की सपोर्ट को ईमेल करते हैं। यह अभी तक का सबसे फुल प्रूफ और गारंटेड मेथड है कि जिसमें आप व्हाट्सएप की सपोर्ट को ईमेल करते हैं और वो अमूमन विद इन 4 to 6 आवर्स आपके व्हाट्सएप का OTP फिर से इनेबल कर लेते हैं। तो होता क्या, जब आपको ईमेल करके वो बता देते हैं कि उन्होंने आपका OTP फिर से ओपन कर दिया, तो फौरी तौर पे आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं और उसके अंदर जाके अपने लॉगिन अटेम्प्ट दोबारा करते हैं, आपको OTP आ जाता है। वो OTP आप डालने के बाद अपने व्हाट्सएप को फिर से अपने पास ला सकते हैं और वो स्कैमर के पास से लॉग आउट हो जाएगा। व्हाट्सएप को ईमेल करते हुए आपने बस चंद चीज़ों का ख्याल करना होता है कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उनको दें। आप उनको वो नंबर बताएं जो कंप्रोमाइज हो चुका है, आप खुद का उस बंदे के साथ रिलेशन बताएं, उस पूरी इंसिडेंट की डिटेल बताएं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, जो भी एविडेंस प्रूफ्स आपके पास हैं, वो उस ईमेल के अंदर लाजमी आप उनको मेंशन करें। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इसमें कोई भी अपनी इनपुट देना चाहें कि स्पेशली आपने अपने व्हाट्सएप की रिकवरी कैसे की, तो लाजमी तौर पर कमेंट्स में मेंशन करके हमें बताएं ताकि बाकियों का भी फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।